Namaskar and welcome to In Focus. The Congress Party is in a state of flux. Not only are things changing within the organization, but its relationship with the United Front is increasingly becoming uncertain. So what's happening and where is it all leading? Here to answer those questions is one of the most senior leaders of the party, a former Chief Minister of Maharashtra and a former Defence Minister, Sharad Pawar. Mr. Pawar, I want to first talk to you about how the UP situation affects your party's relations with the United Front government. Before the elections, your party president said repeatedly and categorically that he wanted the United Front to support Mayawati's candidature for CM. That hasn't happened. So what are you going to do about it? हम तो मिलने वाले हैं इस बारे में. On 4th, our Congress Working Committee meeting has been called by Congress President to discuss about this particular subject, and definitely we'll take some stand. अच्छा, आपके प्रेसिडेंट साहब ने तो कह ही दिया है कि इस इशू पे सपोर्ट तो आप विथड्रॉ नहीं करने वाले. So does that mean you are going to do nothing about it? No, no. You see, what exactly we are going to do, that will be discussed and decide on 4th. So I am not in position to tell at this junction because we are going to meet mainly for this. अच्छा, मुझे But simultaneously, it is true that though we are unhappy with United Fronts and their stand, because they are not serious to keep communal forces out, that has been established as per in Uttar Pradesh. Now question comes, and a lot of media people also ask us question whether you are going to withdraw the support. My party president has made party's position absolute clear, because we don't want instability in the country. अच्छा, मुझे ये बताएं, सपोर्ट तो आप नहीं विथड्रॉ कर रहे. आप कह रहे हैं 4 तारीख को आपकी बैठक होगी और आप तब समझौता इसके बारे करेंगे. लेट मी पुट टू यू समथिंग. आप कर क्या सकते हैं सवाए CWC में एंग्री रेजोल्यूशन पास करने के? आप कर क्या सकते हैं? ऑप्शन तो है नहीं. नहीं, ऑप्शन क्या है वो तब निकल सकता है. एक बात सच है. कुछ मिसाल दीजिएगा, क्या निकलेगा? बहुत कुछ बोल सकते हैं. ये सभी आज डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, क्योंकि 4 को मुझे वहाँ कुछ मेरे भी व्यूज रखने पड़ेंगे CWC में, और तब मिलकर हम कुछ तो डेफिनेटली करेंगे. But simultaneously, a responsible political party has to think about nation. And when country is already facing a lot of problems, we don't want to add one more serious problem which will affect the country's economy and which will bring instability to the कमाल की nation. बात है पवार साहब, मुल्क की जिम्मेवारी है कि आपको बहाना मिल गया कुछ नहीं करने का. नहीं, ऐसे कुछ नहीं. जो कुछ करना है, ये सब राजनीति में सभी कोई एक्सट्रीम स्टेप्स ही लेना यानी कुछ करना होता है, इसे हम तो नहीं मानते. अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आपके जो दोस्त हैं पार्लियामेंट में, इंद्रजीत गुप्ता साहब, हरकिशन सिंह सुरजीत साहब, वो तो खुला कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता कि कांग्रेस पार्टी हमें कभी भी छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगले इलेक्शन से डर रही है. इसमें सच तो थोड़ा है. नहीं, बिल्कुल नहीं. सवाल एक ही कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में सोचती जरूर है कि पूरे देश को इस समय चुनाव के लिए भेजना ये देश के लिए ठीक नहीं होगा. हमारी जिम्मेदारी खाली पॉलिटिकल गेन पार्टी के लिए जहां तक मिलेगी वहां तक नहीं है. हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि देश की स्थिति किस तरह से ठीक रहेगी. अच्छा, मुझे ये बताएं साहब, 4 तारीख को बैठक के बाद यूनाइटेड फ्रंट पे एक छोटा थप्पड़ मारा जाएगा? जो कुछ है, जो थिंकिंग है, इसका पता आपको 4 तारीख को लगेगा. आज कहना मुश्किल है. So, but there is a chance then that you may hit them a little to teach them a lesson. I don't know, but we'll definitely communicate our views कि जिसके बारे में उनको सोचना होगा. सबक भी सिखाना होगा. इसके बारे में तो मैं, सबक सीखने की बात होती थी तो सेक्युलर गवर्नमेंट लाने के लिए वहाँ मायावती को मदद करते थे. आप सेक्युलर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा, why can't you support मुलायम सिंह? आखिर in 93 you supported his government. Mayawati broke that government by flirting with the BJP. The BJP is your true political enemy. Today again Mayawati and Kashiram are flirting with the BJP. So in these circumstances, why do you prefer Mayawati to Mulayam? सवाल ये है कि मायावती, जहाँ तक काशीराम जी ने हम लोगों से बात की, इससे उनके साथ जाने वाले नहीं है. मगर अखबार में तो कुछ न्यूज़ आती है, और सपोज if anybody goes with BJP and form a government, then the responsibility will go definitely to United Front, not others. मतलब अगर मायावती बीजेपी के साथ सरकार बना दे तो ये जिम्मेवारी
यूनाइटेड फ्रंट की होगी क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि वहां इस तरह से डिसीजन मायावती ने लिया। अच्छा, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुलायम सिंह को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? बात ऐसी है कि मेरी पार्टी वहां से एक्सेप्ट करती नहीं उनको। मगर क्यों? बहुत कुछ सब प्रॉब्लम, वो भी सेक्युलर ही है भाई। सवाल वहां जो कांग्रेस पार्टी और बीएसपी ने जो चुनाव लड़ा, इस बारे में एक बात सामने थी कि जैसे कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई उन्होंने की कांग्रेस पार्टी ने, वैसे गुंडागर्दी के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई की थी। वो लोगों के सामने बात रखी थी। उनको ऐसे लगता है कि गुंडागर्दी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी पर भी आती है, और समाजवादी पार्टी के कुछ इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो नेता लोग हैं उन्होंने एक्यूज पकड़ा था, उनके ऊपर प्रहार किया था, और ये पब्लिक स्टैंड लेने के बाद उनको ये लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, मुलायम सिंह जी तो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर ही है। अच्छा, उनको ज़्यादा ही दिलचस्पी वहाँ रहते थे तो वहाँ का इस्तीफा देते नहीं थे। उन्होंने विधानसभा का चुनकर आने के बाद इस्तीफा भी दे दिया, और उन्होंने अपना प्रेफरेंस डिफेंस मिनिस्ट्री कंटिन्यू करने के बारे में दे दिया। और एक बार उन्होंने अपना प्रेफरेंस देने के बाद मुझे नहीं लगता उनका सवाल अभी आएगा। तो अच्छा, फिर मेरा आखिरी सवाल इसी बातचीत के बारे में, मुझे ये बताइएगा, do you think there is a real danger that Mayawati may join up with the BJP if the UF doesn't support her? To be frank, as per our discussion, my party's discussion with BSP leadership, there is no danger. But there are continuous reports in last 5-7 days which appeared in the media, and electronic media also shows some of the meetings between BSP leadership and BJP leadership. Don't know what transpired in that particular meeting. Okay, so that means 4 तारीख को, चाहे आप माने ना माने, आपने यूएफ सरकार को एक आखिरी धमकी देनी जरूर है। धमकी या थप्पड़, इस पर हमारा विश्वास नहीं है। जो कुछ कहना है वो साफ तरह से, सीधी तरह से कहने की बात है, और वो कहने की सीरियस वार्निंग, जो कुछ है हमारी सिस्टम प्रैक्टिस, इस तरह से हम हमारा जो कुछ कहना है उनको बतलाएंगे। Okay. मुझे ये बताइए, your party president has also publicly said, his words were, it is immoral, it is unjustified. He said the government was wrong to have imposed president's rule in UP. Now, when Parliament has to ratify president's rule, if it comes to that, will you vote for it or against it? तो इस पर कुछ बात नहीं हुई, मगर एक बात पक्की है कि जब हम ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट चलना चाहिए, तो हमारा अप्रोच गवर्नमेंट चलने के लिए जिसकी मदद होगी उस तरह का होगा। मैं समझा नहीं, फिर से कहिएगा। ये गवर्नमेंट चलना चाहिए, हम तो इंस्टेबिलिटी देश में नहीं चाहते, इसलिए हमारे जो कुछ व्यूज है वो संसद में रखे जाएंगे, ठीक तरह से, साफ तरह से बतलाए जाएंगे, मगर बर्ताव ऐसे रहेगा कि जिससे गवर्नमेंट पर बुरा असर न हो जाए। कौन सी गवर्नमेंट? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। But then, sir, you face a serious dilemma. आखिर, if you vote for president's rule, you will be contradicting your party president. If you vote against president's rule, you will not only defeat the government you support, but you will end up supporting the BJP. No, question of defeating government doesn't arise. I categorically mentioned that we'll put our views frankly in the parliament in both houses. Simultaneously, our actions will be such which will not affect the government. So what you are saying is that you will end up supporting president's rule. One has to study, the arithmetic has to be studied. Abstain भी रह सकते हैं, abstain रहने से फायदा हो सकता है तो वो भी सोच सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी अजब बात आप कह रहे हैं साहब। Your party president called it immoral, unjustified, and on an issue of morality and justice, you are either going to abstain or you will contradict his position. That is action. That is politics, sir. But views जो है वो politics means views, and जब views express करना है वो साफ हमारे views और इनके बारे में नाराजगी जरूर वहाँ बतलाई जाएगी। नाराजगी बतलाई जाएगी, आपका ही लफ्ज था, आपका ही लफ्ज था, नाराजगी बताई जाएगी।
जो कुछ हमारा कहना है, जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, जिस तरह से उन्होंने सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए कदम नहीं उठाए, इस बारे में जो बात हमारी है वो तो जो कुछ तरीका से कहना है वहाँ बताना है वो जरूर कहेंगे, बताएंगे। चलिए साहब, आपने नाराजगी इस्तेमाल की थी, मुझे ये बताएं, इट सीम्स टू मी एज आई हियर यू टॉक दैट योर रिलेशनशिप विद द यूएफ इज बिकमिंग ट्रबल्ड and these troubles are going to get worse. Isn't that the case? No, that is, we are worried about the country's overall situation, number of issues, number of the international issues. मगर इस बारे में बात हो सकती है, रास्ता निकल सकता है। लेकिन नतीजा तो बदला नहीं रहे, बातें ही बातें करते रह रहे, वो तो आपकी बारी सुन भी नहीं रहे। ऐसे कुछ नहीं, कई इश्यूज पर वो सुनते भी है, सुनते नहीं ऐसे नहीं। This government will only last as long as the Congress party wants it to last. Given your experience of the last 5 months, how long do you want it to continue? You see, generally our thinking is that this government should complete its tenure, but it depends. How can you say in politics what will exactly happen tomorrow? Let me reverse the question and ask it differently. What is your opinion of this government's performance in the last 5 months? We are worried about overall economic situation of the country. Economy जरा दिन ब दिन खराब हो रही है ऐसे हमें लग रहा है, और हम इससे बात करने वाले इसकी। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट देश में खराब हो जाना देश की हित की बात नहीं है। ग्रोथ रेट जो था जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब का, इसके आगे जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नहीं कामयाब हो सकते तो कम से कम वो तो मेंटेन होना चाहिए। ये तो गिर रहा है साहब, ग्रोथ रेट गिर रहा है। That is the reason why we would like to discuss all these issues, and on 4th meeting we will discuss these issues also, and we will decide इस बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं, कैसे रास्ता निकल सकता है कि जिससे सुधार हो जाए। इस पे भी वार्निंग दी जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि भारत का एक स्थान दुनिया की राजनीति में रहा है। कल जिस इश्यूज पर भारत का डिफीट हुआ, यूएन की बात कर रहे हैं आप, और वो भी 140 वर्सेस 40, इतना डिफीट भारत को इससे पहले कभी मिला नहीं था। इसलिए हमारे जो कुछ फॉरेन अफेयर्स के बारे में जो कुछ काम है वो ठीक तरह से हो रहा है, इसे हमें लग नहीं रहा, क्योंकि एक बार यहाँ होने के बाद फिर सिंगापुर में कॉमर्स मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, शायद वहाँ भी कुछ हो सकता है, और इसका असर ओवरऑल देश के प्रगति पर बुरा हो सकता है, देश की इज्जत पर हो सकता है। और इसलिए ऐसे कुछ इशू है कि जिस बारे में वी आर क्वाइट वरीड, एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज इश्यूज आफ्टर डिस्कसिंग विद इन आवर पार्टी with United Front leadership. Let me add to these issues. The 3 service chiefs are daily complaining about the lack of attention to their services. We have an absentee defense minister, and you have a united front that at best speaks with different voices, at worst it's quarreling with each other. Real problem which forces are facing today to lack of resources. They definitely, there are some serious demands from them. They want to upgrade their entire air force. Substantial number of fleet is little bit outdated, and we have to improve that. In army, there has to be a substantial investment and to improve number of things. In navy, we are also a lot of facing. We have not bought new ships for many years, and we have to take certain bold, drastic decisions. And enough money is not provided. That is the problem which country is facing today. But I think on this particular subject, the parliament as a whole will definitely pay its serious attention to on this particular subject, and will suggest some alternatives which will be ultimately helpful for armed forces, and they will be effectively able to protect the interest of nation. So in other words, United Front का ही मामला नहीं रहेगा, पूरी पार्लियामेंट ही इसकी जिम्मेवारी उठाने वाली। बिल्कुल, ये सवाल ऐसे है कि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर कुछ रखकर हमारी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है, इस तरह से अप्रोच लेने से देश का, मुल्क का नुकसान हो जाएगा। Fawaz Saab, there we have to take a break because we have to wait for the commercials, but I want to continue this discussion in part 2. Don't go away, we'll be back in just a couple of minutes.
Welcome back. Mr. Pawar, in part one we were talking about your party's relationship with United Front government. Now I want to talk about your party itself. I'm confused about what the Congress party stands for. In Gujarat, you've done everything to support Shankar Singh Waghela, although he's a committed, self-confessed RSS member. And in UP, you're doing everything to keep the BJP out because it's communal. These are contradictory. You see, Shankar Singh Waghela has left. He resigned from BJP. He hasn't resigned from the RSS. वो तो कल रात को ही RSS के बारे में बहस कर रहे थे. ठीक है, अगले हफ्ते दूसरा बोलेगा, क्योंकि इनसे बात हुई थी और हमें मालूम है उनका थिंकिंग क्या है, इसलिए हम कोई ज़्यादा इस बारे में बहस नहीं करना चाहते. मगर एक बात पक्की है कि उन्होंने जहाँ 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी गुजरात में, और जिन्होंने वायदा किया था देशवासियों को कि हम किस तरह से हुकूमत चलाते हैं, ये गुजरात में आप देख सकेंगे. तो गुजरात में 2/3 मेजॉरिटी के बाद सरकार उनका बचा नहीं, और जो पार्टी का 12 साल प्रधान था गुजरात स्टेट का, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले ली. लीडरशिप बीजेपी को डिनाउंस करके, पार्टी के खिलाफ बगावत करके, और कुछ इश्यूज लेकर उन्होंने अलग बैठने का काम किया. हमारी जिम्मेदारी उनको इस समय मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है. खुली बात है. ये सब आपने किया क्योंकि आप बीजेपी को गलत दिखाना चाहते हैं, झूठा बनाना चाहते हैं. नहीं, सवाल झूठा बनाने का नहीं, हम लोगों के सामने बीजेपी की वास्तवता है वो दिखाना चाहते हैं. और वघेला साहब को मुख्यमंत्री बना के यही नतीजा होगा? वघेला साहब को हमने मुख्यमंत्री में समर्थन दे दिया बाहर से. वो ठीक तरह से काम करेंगे तो हमारा समर्थन है, नहीं तो नहीं करे ये गया. हाँ जी, नहीं करे तो क्या करने वाले हैं, ये अभी पता नहीं कि क्या जरूरत लग रहा है जैसे आपके हाथों में राजनीति बच्चों का खिलौना बन गया. नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, इस राज की हित की बात हम सोचते हैं. गुड्डी प्यारी लगी तो आपने गद्दी पे बैठा दी, गुड्डी रोने लगी तो थप्पड़ मार के हटा दिया. नहीं, वो गुड्डी नहीं ना, बड़ा है तो आपकी गुड्डी, है तो आपकी गुड्डी. जब आप हटाना चाहते हैं आप हटा सकेंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं. जब ठीक तरह से काम करते हैं तब तक हम बिल्कुल समर्थन देने वाले हैं. वही चीज आप कह रहे हैं, सिर्फ लफ्ज ही आपके कुछ और है. नहीं, हंस के आप हाँ ही कह रहे हैं. हम हाँ नहीं कहते, ना भी नहीं कहते. अच्छा पवार साहब, the other issue that your party faces is this question of Congress unity. Are you personally in favor of it? Yes, certainly. You see, there is a tremendous setback to my party in last elections, whether in assembly or in parliament. And आज जरूरत है कि मिलकर काम करने की. एक और लोगों के सामने जो सवाल पैदा हुए, कुछ गलतियां भी हमारे लोगों से, हम लोगों से हुई है, इसमें दुरुस्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, कदम उठाते हैं. ये एक्शन से लोगों को दिखाना होगा और पार्टी का संगठन मजबूत करना होगा. इश्यूज पर लोगों के सामने जाना होगा. शायद इसलिए देर भी लगेगा, मगर मेहनत करके फिर पार्टी बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी. क्योंकि आज कोई मानो न मानो देश में वायबल अल्टरनेटिव देकर देश चलाने की ताकत कांग्रेस पार्टी में ही है. To achieve all this, what is the priority you give to Congress unity? Unity is also one of the most important thing, and that is one of the reason why working committee has passed unanimous resolution to support unity. Unity दो तरफ की unity है. कई कांग्रेस की विचारधारा में जिनकी जिंदगी गई, ऐसे हमसे लोग कुछ दूर गए, उनको वापस आने लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. और इस बारे में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कुछ कहा है कि हम लाना चाहते हैं, केसरी जी ने बार बार कहा है. तो इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और विचारधारा मजबूत करनी पड़ेगी. और साथ साथ आज हमारे घर में भी एकता प्रस्तावित करने के लिए भी हमें ध्यान देना होगा. मतलब इंटरनल डिफरेंसेस मिटाने, That's right. डिसेंशन मिटाना. हाँ. अच्छा, डू यू वेलकम बैक पीपल लाइक सिंधिया, चिदम्बरम, मूपनार? बात ऐसी है कि जो कांग्रेस में रहे थे कई साल, तो उनको वापस लेने की बात तो है ही है. हमने कोई किसी इंडिविजुअल के नाम पर तो रेजोल्यूशन किया नहीं. पर मैं जानबूझकर इंडिविजुअल के नाम ले रहा हूँ. तो ये सब लोग कांग्रेस की विचारधारा में थे, कांग्रेस में रहे हैं, और उनका मन कांग्रेस से दूर गया है. इसे लगता नहीं, कुछ इश्यूज पर वो नाराजगी थी. इनमें अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी साहब भी शामिल है. वो भी कांग्रेस में उनकी जिंदगी गई है. हेगड़े और चंद्रशेखर, वो आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, मगर वो भी कांग्रेस ही है. आएंगे तो हम स्वागत करेंगे उनका. बड़ा अच्छा प्रोग्रेस बन रहा अपना साहब. वीपी सिंह,
वीपी सिंह भी इस बारे में सोच सकते हैं, तो दरवाजे सबके लिए खुले। मुझे तो कोई इतराज नहीं लगता इन लोगों को। लेकिन केसरी साहब ने तो कुछ और कहा था, उन्होंने कहा था कि हम चुन चुन कर लेंगे, सिर्फ उनको जिनका लेने में हमारा फायदा हो। आप कुछ और कह रहे हैं? ये जो नाम आपने कुछ कहे, इससे कुछ नुकसान होगा, इससे मुझे नहीं लगता। वीपी सिंह से भी नुकसान नहीं होगा? नहीं, वो ठीक तरह से काम, कांग्रेस की विचारधारा से प्रामाणिकता से काम करने की तैयारी उनकी रहेगी, तो उनका स्वागत क्यों नहीं करें। पवार साहब ये सब कहते हैं जब इनको पूछा जाए कि लौटने के लिए तो तैयार हैं, बट दे से दैट दे विल ओनली कंसिडर रिटर्निंग when Narasimha Rao stops being leader of the Congress legislature party. Now, what are you going to do about that? सवाल कोई किसी पार्टी में जब आप शामिल होने की बात करते हैं, तब कंडीशन डालकर कभी कांग्रेस के किसी पार्टी में कोई शामिल हो नहीं सकता। हाँ, इश्यूज पर बात हो सकती है, मगर कंडीशनैलिटी मत दें। मैं सवाल बदल के पूछता हूँ, हाउ लॉन्ग विल नरसिम्हा राव कंटिन्यू एज हेड ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी? He is today Congress parliamentary party's leader. पर मगर कितने दिन रहेंगे? कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की टेन्योर 5 साल की होती है। आप कह रहे हैं कि पूरे 5 साल रहेंगे? भाई ऐसी स्थिति रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं। इस तरह की भावना लोगों के मन में पैदा हो जाएगी, वो खुद लीडरशिप की जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहते, तो सवाल कोई पैदा होगा, इसे मुझे लगता नहीं। साहब मैं आपको एक खुला सवाल पूछूंगा, आप मुझे खुला जवाब देंगे? देखेंगे, कन्वीनियंट हो तो जो चलिए, इफ इट वाज necessary for Mr. Rao to resign from the presidency of the Congress party, why is it not necessary for him to resign from the headship of the Congress parliamentary party? You see, important thing is All India Congress Committee, और All India Congress Committee की जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी, और उन्होंने सबके साथ बातचीत करके नए प्रेसिडेंट के हाथ पर, कंधे पर ये सब जिम्मेदारी सौंपी, और उनका भी योगदान नए प्रेसिडेंट साहब को ठीक तरह से है। सवाल आ गया पार्लियामेंट्री पार्टी का। जब तक पार्लियामेंट्री पार्टी के हम सब लोग जो मेंबर्स हैं, तो हमें लगता है कि इसमें परिवर्तन की आज जरूरत नहीं, तो काय के लिए छोड़े। Are you personally in favor of him staying as leader or resigning? No, I myself is a member of the parliamentary party, and when parliamentary party feels he should continue. नहीं, मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी की बात नहीं पूछी, मैंने आपकी राय पार्टी का मैं खुद मेंबर हूं ना। मैंने आपकी राय मांगी थी। मेरे सामने पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बैठी, आप बैठे। Are you personally in favor of him resigning or staying? If I myself is a member of the parliamentary party, and if the parliamentary party's thinking is he should continue. आप पार्लियामेंट्री पार्टी के पीछे, आप पार्लियामेंट्री पार्टी के पीछे अपने विचार हाइड कर रहे हैं मुझसे। सुनिए जरा, तो हम सब अभी ऐसे कुछ सोचते नहीं कि उन्होंने पद से हटना चाहिए, जिसमें मैं भी हूँ शामिल। मुझे लगता है कि लोग आपका जवाब सुन के कहेंगे, बेचारे कह नहीं सकते, लेकिन दिल में तो कहना चाहते हैं कि इनको रिजाइन करना चाहिए। शायद ये आपके दिल में होगा। अच्छा, आपने लेकिन मेरी बात इनकार नहीं की। मेरी बात आपने इनकार नहीं की। मैंने ये बात साफ कही कि हम चाहते नहीं कि इसमें आज परिवर्तन की कोई जरूरत है। My last question. Suppose Mr. Rao steps down from the leadership of the CLP. Will you be a candidate? Question itself is hypothetical. But what's wrong with the hypothetical question? भाई, जब जो परिस्थिति आज नहीं, इस पर आज काहे के लिए अपने कार्ड डिस्क्लोज करें? फिर दूसरी बार आप इनकार नहीं कर रहे और आंखों से लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं हाँ, लेकिन it is inconvenient. No, it's not question of convenient or inconvenient. It's a question of one has to think when one should give their views about elections, whether it is a parliament election, whether assembly elections, or whether his candidature for Lok Sabha, or whether his candidature for parliamentary party leadership. This is not the proper time to say anything about that. Mr. Rao is already there. इस सवाल का doesn't arise. What you are saying is this is not the right time to say yes. That's right. Mr. Pawar, on that note, thank you very much for talking so openly to InFocus. That's it for this week. We'll be back next week with another interviewee, but for today, goodbye.